Good morning, everyone. To all the teachers and parents present over here, a very warm welcome to you all. Today we have gathered here for the parents teacher meeting, an important platform that connects two most important vital pillars, teachers and parents. It's a day to share and discuss about our students' progress. Education is a shared journey, and with this meeting, we are going to start this journey together, ensuring the right guidance, motivation, and future of all students with the help of both home and school. We sincerely thank all parents to take out their important time for us. Without further delay, let's start today's session with cooperation and positivity. Hello, ma'am. Hello, ma'am. Okay, ma'am, I just want to ask you regarding the school. Okay, so what do you think about improvement of your child regarding the school? The school is very nice and very supportive, and even it's very flexible. Management is so flexible in every aspect. It's help us and also solve every queries regarding the student and the school and all. And also even the cultural activities are also really good over here. And overall, the management in the school is really good. So, what improvement you have seen in your child? Uh, she has been good in the subjects, the basic subjects, and also in cultural activities. And she is also an art student, so so her art is very enhanced during this period. And she's new to the new to the school. She's recently joined the new joinee of the school in 11. Okay, thank you, ma'am. Have a good day. Hello, Divyanshi. Hello, ma'am. So, what else? What the improvement you have seen yourself as you are the new admin, new student in the school? So, what improvement you have seen in yourself? Even though I'm new here, but I have really blended in with the school because the culture, the environment is so good that I feel so homely here. Like for the first time I participated in debate, there was no intention of mine in participating, but my friend told me that you should do. She encouraged me basically. So the environment is quite good and friendly. And after when I stood first in debate, that I gained confidence after that and that really boosted my confidence to participate in other activities. So what I feel is I'm very comfortable here and it is so homely out here. Okay, thank you, Vidya. Hello, sir. Hello.
Sir, sir, actually, I just want to ask that how was the child result? काफ़ी अच्छा है। जब स्टार्टिंग में हम पहाड़ से आए थे तो इसका थोड़ा परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन था। अभी काफ़ी अच्छा प्रोग्रेसिव है, परफॉर्मेंस बिल्कुल सही है अभी मेरे हिसाब से। तो आपने क्या what the improvement you have seen in your child? इम्प्रूवमेंट सब जगह हुआ है, मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी अच्छी है और ओवरऑल एक्टिविटीज़ में वेल आई एम सेटिस्फाइड। Thank you, sir. Good morning, Ananya. Good morning, ma'am. Beta, how was the result? Ma'am, it was very good. Good. Okay. How much marks you scored? You think it was up to your mark? Ma'am, Hard work up to my expectation. up to your expectation. So, what else you want to say regarding your result and time management for the studies? Ma'am, I worked hard for my studies. How much hours you are given for your studies? 2-3 hours. Thank you, beta, and good luck for your future. Thank you, ma'am. सबसे पहले तो कोमल आपको शुभकामनाएं। आपका आधा सत्र लगभग समाप्त हो चुका है, कैसा आपका रिजल्ट रहा? सर मेरा रिज़ल्ट अच्छा रहा है और मुझे लगता है कि टीचर्स के एफ़र्ट्स के साथ अपना कुछ एफ़र्ट लगा के मिक्स करके ओवरऑल रिज़ल्ट अच्छा रहा है। कुछ माह के बाद आपके बोर्ड एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो उस चीज़ के लिए आप किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं? क्या अतिरिक्त प्रयास आपकी तरफ से रहेगा और अन्य विद्यार्थियों को क्या सलाह देना चाहेंगे कि तैयारी को लेकर आपके क्या विचार हैं इस बारे में? सो बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स को लेकर प्रिपरेशन तो ऑलरेडी चली रही है और एफ़र्ट्स जिन चीज़ों जो मतलब वीक पॉइंट्स हैं हमारे, उसमें अगर और एफ़र्ट्स लगाए जाए तो मुझे लगता है कि हम सभी मिलकर अच्छा कर सकते हैं और टीचर्स का भी जो है हेल्प वगैरह रहता है, बी इट एवरीथिंग रिवीजन से लेकर सैम्पल क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग तक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सब हमको अच्छे से बताया जाता है टीचर्स के द्वारा, अच्छे से इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, इंस्ट्रक्ट किया जाता है एंड विद दैट इवेंचुअली अगर एनुअल में परफॉर्मेंस अच्छा हुआ और अपने और टीचर्स के तो एफर्ट्स रहते ही हैं और अपने भी अगर एफर्ट्स हमारे फुल रहे तो हम अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। और मैं अपने फ्रेंड्स को फेलोज़ को यही सलाह देना चाहूँगी कि स्ट्रगल करें और अगर हम अपने फुल एफर्ट्स लगाएंगे तो डेफिनेटली वी विल परफॉर्म बेटर इन अवर बोर्ड एग्जामिनेशंस। धन्यवाद कोमल, आप हमारे साथ जुड़े। हमारे साथ हैं कक्षा 10वीं की छात्रा भूमिका पंत के अभिभावक, उनके पिताजी। तो जानते हैं उनके बच्ची का रिजल्ट कैसा रहा और विद्यालय के बारे में उनके क्या विचार हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद यूनिवर्सल टीम का, यूनिवर्सल कॉन्वेंट स्कूल का, कि हाफ ईयरली के बाद ऑन टाइम दे आर अरेंजिंग द पेटीएम। सो इट्स ए गुड इंटरेक्शन पॉइंट बिटवीन पेरेंट्स एंड टीचर, बिकॉज क्लास 10th इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द चाइल्ड लाइफ. Everybody has to should focus on that one, initial starting and career starting through 10th only. So अभी हाफ ईयरली का रिजल्ट मिला है, कुछ फीडबैक मिली है मैडम से, वेयर स्टूडेंट इज वीक, वेयर वी हैव टू फोकस मोर एंड मोर to get the good marks in the final examination. Still, I want to say we have some time where we can improve student focus and where mark is less, because as per current scenario school is focusing 1 or 2 subject only and take easily for other subject, but as a requirement of syllabus, each and every subject is important for student to get the good marks as well as being a social element in the society. So मार्क अच्छा था, मैडम ने बहुत अच्छी तरह से क्लास टीचर ने एक्सप्लेन किया, वीक पॉइंट और प्लस पॉइंट एक्सप्लेन करे. स्टिल एज ए पेरेंट्स वी आल्सो हैव ए गुड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टू वर्क on children education. I want to say thanks
to Universal Convent School to make a good environment to the children to make their success in the life. धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े और अपने कीमती विचार हम तक साझा किए आपने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ है कक्षा 10वीं की छात्रा प्राची। आज उनका अर्धवार्षिक परीक्षा का परीक्षाफल प्राप्त हुआ है। जानते हैं कैसा रहा उनका परीक्षाफल और आगे की बोर्ड परीक्षा को लेकर उनकी तैयारियां कैसी चल रही हैं। मॉर्निंग सर, कक्षा में 3री पोजीशन मैंने प्राप्त की है। मेरा बहुत अच्छा गया है और आगे भी मैं यही सोचती हूँ कि मेरा अच्छा जाएगा। बाकी स्कूल की बात आई तो टीचर्स यहाँ के काफ़ी अच्छे हैं। ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ वो जो बच्चे अच्छे हैं पढ़ाई में उन्हीं पे ध्यान देते हैं, बल्कि यहाँ पर उन बच्चों पे भी ध्यान दिया जाता है जो पढ़ाई में कमज़ोर है। उन्हें भी आगे लाने की बहुत कोशिश की जाती है कि वो भी आगे बढ़ के आएँ, कि उनके भी मार्क्स अच्छे आएँ। और इस स्कूल में समय समय पे अलग अलग प्रतियोगिताएं होती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं जो हमारी स्किल्स बहुत अच्छे से डेवलप करती हैं। और कुछ तो हमारी कल्चर्स के रिलेटेड होती है, जैसे एपड़ मेकिंग कंपटीशन, धेली बनाओ और मेहंदी कंपटीशन। जो ईच कंपटीशन होता है तो उससे बच्चों की लैंग्वेज स्किल बहुत अच्छी होती है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी बहुत हेल्प करती है इस स्कूल में, वो चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी। धन्यवाद प्राची, आप हमारे साथ जुड़े और अपने विचार हम तक साझा किए। हमारे साथ हैं कक्षा 10वीं के छात्र मयंक धानक। जानते हैं उनसे कि आज जो उनका रिजल्ट आया हुआ है अर्धवार्षिक परीक्षा का कैसा रहा और बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारी को लेकर उनके क्या विचार हैं और किस तरीके से वो तैयारियां कर रहे हैं और विद्यालय के प्रति उनका क्या विचार है। नमस्कार सर, मेरा पेपर बहुत ही अच्छा गया और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे बोर्ड के पेपर भी ऐसे ही जाएं। हमारे स्कूल में पढ़ाई तो बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन अगर विद्यार्थी घर में भी उतनी ही अच्छे से पढ़ाई करे तो उसे अच्छे परसेंट लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो मेरा मानना है कि घर में विद्यार्थी को कम से कम 3-4 घंटे तो पढ़ना ही चाहिए और स्कूल की पढ़ाई अच्छी हो रही है और शिक्षकों का सहयोग हमारे साथ है। धन्यवाद। हमारे साथ हैं कक्षा 12वीं के छात्र उज्ज्वल शर्मा के पिताजी। उज्ज्वल का आज अर्धवार्षिक परीक्षा का रिजल्ट आया हुआ है। उज्ज्वल का रिजल्ट कैसा रहा और बोर्ड परीक्षा की तैयारियां उसकी कैसी चल रही हैं, उनके आशानुरूप विद्यालय काम कर रहा है या नहीं, इस बारे में उनके विचार जानते हैं। पहले मैं विद्यालय को सभी विद्यालय के सीनियर टीचर्स हो गए, प्रिंसिपल हो गए और डायरेक्टर सर को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि हमारा बच्चा जो पढ़ रहा है अभी बहुत अच्छी स्टडी चल रही है और आगे भी अच्छी रहेगी। उसका रिज़ल्ट भी ठीक ही है। अभी जैसे हिसाब से हम लोग पढ़ाई कर पा रहे थे उस हिसाब से ठीक है और आगे भी स्कूल की तरफ से जो टीचर्स हैं और विद्यालय है बहुत महत्वपूर्ण है उनका सहयोग करना, क्योंकि बच्चा जो भी करेगा वो उसके लिए टीचर्स या पेरेंट्स ही दायित्व है उसका कि वो कैसे कर रहा है। और टीचर्स को मैं टीचर्स से कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप लोग जो पहले जो कंप्लीट हो गया है हमारा कोर्स उसका रिवीजन करवा के और बच्चे को और बहुत ऊपर तक हम ले जा सकते हैं, उनके मार्क्स बहुत अच्छे आ सकते हैं। तो मैं पहले धन्यवाद करूंगा सभी टीचर्स के लिए कि आपने जो भी किया है बहुत अच्छा है और आगे भी इसी तरीके से और इम्प्रूवमेंट कीजिए। धन्यवाद। सर, आप हमारे साथ जुड़े और अपने कीमती विचार हम तक साझा किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ हैं कक्षा 7वीं की छात्रा दिव्या पांडे। आज उनका अर्धवार्षिक परीक्षा का रिजल्ट आया हुआ है, तो कैसा उनका रिजल्ट रहा जानते हैं उन्हीं से। दिव्या, कैसा रहा आपका रिजल्ट? सर, मेरा रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है। मुझे ये भी पता चला कि मैं और भी अच्छा कर सकती हूँ, तो मैं ट्राई करूँगी कि मैं अपने एनुअल में और भी अच्छा करूँ और मैं और अच्छा ट्राई करूँगी जिससे मैं अपनी मदर और अपने टीचर्स को अच्छा फील कराऊँगी। बहुत बढ़िया दिव्या, आगे के लिए आपको शुभकामनाएं। हमारे साथ हैं दिव्या पांडे की माता जी। जानते हैं उनकी बच्ची के रिजल्ट को लेकर क्या कुछ वह सोच रही हैं और एक अभिभावक जिन आशाओं को देखते हुए, जिन उम्मीदों के साथ एक विद्यालय में अपने बच्चे का दाखिला करता है, तो क्या वह उम्मीदें उनकी इस विद्यालय से पूरी हो पा रही हैं? हाँ, रिजल्ट तो अच्छा था मेरे दोनों बच्चों का, बेटी का भी बेटे का भी, दोनों का अच्छा है और टीचर्स भी मतलब अच्छे हैं। इसका मतलब मुझे कोई ऐसी कोई शिकायत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब अच्छा किया है दोनों, मतलब बेटी का भी बेटे का भी। धन्यवाद मैम, आप हमारे साथ जुड़े और अपने कीमती विचार आपने हम तक साझा किए, इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका।